everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to my channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to my channel, please hit the subscribe button given below. And you can even share this video to all of your friends who are studying in Standard 12. I have also started making videos on 11th standard class, that is Maharashtra State Board syllabus. So you can also recommend my channel to 11th standard students. And now you can also join our Telegram group, which link is provided in the description. Also, the coordination chemistry notes are now available. This link you can get from the coordination videos in the description. And let's get started with today's topic, that is halogen derivative. This is topic number 10 from 12th standard Maharashtra State Board syllabus. Actually, we are done with this topic. Today we are going to solve the exercise, the questions which are given in the backside of the chapter. So the first question here is, choose the correct option. So what they have asked you, that the CX bond, reactivity of CX bond towards nucleophile. Remember, all the options given here are wrong. There is no correct option in this options given, okay? So what is the correct option? As you know that alkyl halides are more reactive than aryl halides towards the nucleophile. So third and fourth are more reactive than first and second. And from this third and fourth also, tertiary alkyl halides are more reactive than secondary. That's why option third is most reactive, then option fourth. Then if you talk about aryl halides, so aryl halide in which electron withdrawing group is present is more reactive than the normal aryl halide. Therefore next is second and then the first. So this is the correct order of reactivity. Most reactive third, fourth, second and first. And there is no such option given here, and therefore this question given in this exercise is wrong. So you can change the options here. So you can make first, second, then fourth here and third the most reactive, and then you can say that this option is correct if you make these changes. Okay. Next question is CH3CH2 reacts with HI in the presence of peroxide. So what will be the major product? They are talking about the major product. Peroxide, as soon as you see peroxide, you think about anti-Markovnich's rule. And according to anti-Markovnich's rule, you think that the iodine will get attached to the less substituted carbon, or the carbon which have more number of hydrogen. Yes, but you are wrong. Remember, anti-Markovnich's rule is only and only applicable to HBr. It is not applicable to anything else. Whatever you take on arrow other than HBr, it is not applicable. So, according to anti-Markovnich's rule, only HBr will show such type of reaction. Others will show the normal reaction of Markovnich's rule, and therefore here the negative part of the reagent, that is iodine, will get attached to carbon which have less number of hydrogen, and in that case your option C is correct. So your correct answer over here is option C. For the third question, which of the following is likely to undergo racemization during alkaline hydrolysis? Okay, so alkaline hydrolysis and you want racemization. So alkaline hydrolysis and racemization, this concept is applicable only to SN2 reaction, because you know that, SN1 reaction, because you know that only SN1 reaction give you racemic product. Okay, SN2 reactions, what they give you? Inverted product, that is Walden inversion. While SN1 reaction will always give you racemized product. One product in which the configuration is retained, the other in which the configuration is inverted.
So you need to check out which out of this will give you actually the SN1 type of reaction, and that will give you racemization. So if you see, first, yes, it can, because it is a secondary alkyl halide, so it can give you racemization, correct. About second, no, because it is primary alkyl halide, so it will generally give you SN2 reaction, so it cannot give you racemization. Third, there cannot be substitution reactions. Aryl halides very rarely undergo substitution reaction, so this can't. Again, this is a primary alkyl halide, so it will give you SN2 reaction. Again, racemization not possible. So only first can undergo SN1 reaction and give you racemic product. Therefore, option A is correct. Next question, fourth. The best method for preparation of alkyl fluorides is. So alkyl fluorides can be best prepared by Schwartz reaction. Okay, so the option B is correct. Next, identify the chiral molecule from the following. So you need to identify chiral molecule. For that you need to draw all these molecules. So first, 1-bromobutane. For the structure of 1-bromobutane, you need to draw first butane, correct, that is 4 carbon, then first position bromo, then this will be H2, correct, then it is H2, H2, CH3. क्या आपको कहीं पे भी कायरल कार्बन दिख रहा है, ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं? नहीं. So 1-bromobutane is not chiral in nature. Next, talk about the B option. So now we'll talk about the B option, that is 1,1-dibromobutane. So again draw butane, okay, and then 1,1-dibromo, that is bromine at the first carbon, 2 bromines at the first carbon, and then add all other groups, and then tell me again, are you able to see any carbon having 4 different groups? Yes. किसी को कायरल कार्बन दिख रहा है? नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है चारों में जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, करेक्ट. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो रूल्ड आउट. नाउ सी, दैट इज 2,3-dibromobutane. अगेन ड्रॉ ब्यूटेन and now add at 2 and 3 position bromine. Okay, so I am adding bromine at 2 and 3 position, and now tell me, can you see any carbon having 4 different groups? Yes, can you see any carbon having 4 different groups? Yes, correct, there are 2. This carbon which has 1 hydrogen, 1 bromine, 1 methyl and 1 this whole group. Next, this carbon is also chiral, having 1 hydrogen, 1 bromine, 1 CH3 and 1 whole this group. So these 2 carbons have 4 different groups, therefore they are chiral. So option C is correct. Now we'll talk about the option D. So again you have to draw butane, and now 2-bromobutane. So 2 position bromine you will add, and now can you tell me which one is the carbon which is chiral in nature? Can you see a chiral carbon? Yes, you are correct. So this is the chiral carbon which again have 4 different groups, that is bromine, methyl, hydrogen and ethyl. So this carbon again have 4 different groups attached to it, and therefore it is chiral in nature, and option D is also correct. So here the correct answer is option C and option D. Okay, I hope so you have got this answer. Next is question number 6. An alkyl halide or chloride on Brude's reaction gives 2,2,5,5 tetramethyl hexane. The same alkyl chloride on reduction with zinc copper couple in alcohol give hydrocarbon with molecular formula C5H12. What is the structure of alkyl chloride? You know that in Brude's reaction you get the alkane which is double the carbon of alkyl halide. Brude's reaction में जो alkane बनता है उसमें कार्बन का जो काउंट है वो डबल रहता है गिवन अल्काइल हैलाइड से, क्योंकि 2 सेम अल्काइल हैलाइड एक दूसरे से रिएक्ट करके हमें वो अल्केन देते हैं, करेक्ट.
तो हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है पहले और उसको हाफ में डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो हेक्सेन, सो हेक्सेन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 और किस पोजीशन पे 2 2 5 5 पे टेट्रामेथिल, सो 2 2 3 4 5 5, so this is the alkane which is formed after the reaction, ठीक है। ये अल्केन है जो आपके रिएक्शन के बाद बन रहा है। अब इसको इक्वल में काट दो, यहाँ से कट किया तो 2 इक्वल हाफ है, तो एक हाफ को लिख लो। ब्रूस रिएक्शन को गेस करना बहुत आसान है, इक्वल हाफ में काट के उसका एक हाफ लिख लो। तो CH3 यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा था, CH3 था, और CH2 अब इसमें Cl लगा दो। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो दिस two molecules will react with sodium in dry ether to give you this. That's why your correct answer is option A. So here your correct answer is option A. You can see clearly. Okay, so this two molecules will react with sodium to give you the option, this product, that is option A is correct. Next, butane nitrile may be prepared by heating. So butane nitrile बनाना है आपको, वो किसके साथ प्रिपेयर किया जा सकता है, किसको हिट करने से आपको ब्यूटेन नाइट्राइल मिलेगा। सो ऑफ कोर्स एन प्रोपिल क्लोराइड विथ KCN। तो आप देख सकते हो कि एन प्रोपिल क्लोराइड को CH3 CH2 CH2 Cl, सो एन प्रोपिल क्लोराइड को यदि मैं KCN के साथ रिएक्ट कर दूं तो मुझे मिलेगा ब्यूटेन नाइट्राइल, दैट इज CH3 CH2 CH2 CN. So there are 4 carbons with a nitrile, so this is butane nitrile. So your answer is option D. Next, choose the compound from the following that will react fastest by SN1 reaction. तो आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, आपको याद रखना है। सो SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनाना है, तो आपको ऐसा एक ऑप्शन ढूंढना है जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। और कार्बोकेटाइन कब स्टेबल होता है, जब उसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो, जिस कार्बन को ज़्यादा कार्बन ज्वाइन हो वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो आपका एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है और वही आपका करेक्ट आंसर है। तो हमें 1 by 1 सारे ऑप्शंस को लिखने पड़ेंगे ये देखने के लिए कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है। तो फर्स्ट इज 1 आयोडोब्यूटेन, सो ब्यूटेन 3 4 और 1 आयोडो, तो ये आयोडीन को मैं निकाल भी दूं तो ये क्या दे रहा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो दिस विल शो SN2 रिएक्शन, करेक्ट। तो फर्स्ट वाला क्या दिखा रहा है, SN2। अब सेकेंड 1 आयोडोप्रोपेन, अगेन दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सो दिस विल ऑल्सो शो SN2। नेक्स्ट 2 आयोडो 2 मिथिल ब्यूटेन, तो 2 पोजीशन पे आयोडीन 2 पोजीशन पे मिथिल। अब मुझे बताओ विच टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इज दिस, यू नो दैट tertiary alkyl halides reacts by SN1 mechanism while primary by SN2. So these two were primary, so they react by the SN2, while this is a secondary, you can see this is a tertiary actually, so this carbon is tertiary, so this will react by SN1। और आप देखोगे तो ऑप्शन सी और डी सेम ऑप्शन से ऑलमोस्ट, यहाँ पे क्या है 3 मिथिल किया है सिर्फ, तो सेकेंडरी है ये, ठीक है। तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, और आपको पता है SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देता है, टर्शरी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन दिस हेक्सिल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ Mg इन ड्राई ईथर, तो एक प्रोडक्ट ए मिलेगा, उस प्रोडक्ट ए को यदि हम वाटर से रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बी मिलेगा। तो हमें बताना है हमारा प्रोडक्ट बी कौन सा है। सो उसके लिए पहला रिएक्शन आपको पता है क्या है, yes correct, Grignard's reagent. So the first reaction will give you Grignard's reagent, so your A product will be of course Grignard's reagent। तो ये हो गया हेक्सेल और ये हुआ Mg और ये Cl, so this is the Grignard's reagent। और इसको यदि मैं कोई भी वाटर या प्रोटॉन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट कराऊं तो MgCl निकल जाता है और हाइड्रोजन इस पोजीशन पे लग जाएगा और मुझे मिल जाएगा व्हाट, hexane। So this is option D, correct product। Next, which of the following is used as source of dichlorocarbene?
सो आपका एप्लीकेशन वाला वीडियो नंबर 5 यदि याद है तो आपको याद होगा कि क्लोरोफॉर्म देता है मुझे डाइक्लोरोकार्बिन। इसलिए सारे एप्लीकेशन याद से याद रखना है क्योंकि वो MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हियर वी एंड विद द MCQs. नाउ डू एज डायरेक्टेड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. सो पहला कंपाउंड का ऑफ कोर्स आप नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, लॉन्गेस्ट चेन. तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5. सो 1 पोजीशन पे है कुछ नहीं, सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन, सो इट विल बी 2 ब्रोमो. थर्ड पोजीशन पे मिथिल, सो 3 मिथिल. और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सो पेंट 3 इन. सो इट इज 2 ब्रोमो 3 मिथिल पेंट 3 इन. फॉर नेक्स्ट अभी वापस आपने लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है 1 2 3 4 5. सो इट इज पेंटेन. 3 पोजीशन पे मिथिल, 2 पोजीशन पे क्लोरो, सो इट इज 2 क्लोरो 3 मिथिल pentane. Next for this, so start numbering from chlorine 1 2 3 4 5 6. So this is hexane, cyclohexane, correct? So it is 1 chloro 4 ethyl cyclohexane, 1 chloro 4 ethyl cyclohexane. Next for this बेंजीन है, करेक्ट, और क्लोरीन वाला बेंजीन. सो इट विल बी, आपको यहाँ से नंबरिंग शुरू करना है. क्यों यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे तो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर आ जाएगा, पर यहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर आएगा. तो आपको ऐसा वाला से नंबरिंग शुरू करना है कि सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर आए. ठीक है, तो यहाँ से शुरू करने पे 3 आ रहा है, यहाँ से शुरू करने पे 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी 1 2 3 4 5 6. सो दिस इज 1 4. ठीक है, 1 4 डाइक्लोरो 2 मिथिल बेंजीन. सो इट इज 1 4 डाइक्लोरो 2 मिथिल बेंजीन. नेक्स्ट राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट. ये देखो वर्ड मेजर, सिर्फ आपको एक ही प्रोडक्ट ढूंढना है मेजर, और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और IUPAC नेम देना है. सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. तो ये ऑफ कोर्स हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, यू कैन सी दिस. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल रिमूव NaCl. NaCl इस रिएक्शन से बाहर आ जाएगा और आयोडीन यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा. सो यू गेट दिस. अभी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है 1 2 3. सो दिस इज 1 iodo 2 methyl propane. So the product is 1 iodo 2 methyl propane and this is halogen exchange reaction. Next, yes, next is also an halogen exchange reaction जिसमें Br exchange हो जाएगा फ्लोरीन से. So यहाँ पे आप 3 molecule of alkyl halide लोगे जो SbF3 से रिएक्ट करेगा और आपको मिलेगा 3 molecules of alkyl fluoride plus SbBr3 in the form of precipitate. और यहाँ मिला आपको फ्लोरोइथेन. ओके, सो दिस इज फ्लोरोइथेन. आई होप यू मस्ट हैव गॉट दिस. नेक्स्ट इज दिस रिएक्शन. सो रिएक्शन ऑफ दिस इज नाउ योर alkene reacts with HBr in the presence of peroxide. Peroxide, yes, very good, it is anti-Markovnich's rule. और HBr है इसलिए एंटी मार्कोनिफ रूल फॉलो होगा, करेक्ट. यहाँ पे HBr की जगह कुछ और रहता है तो एंटी मार्कोनिफ रूल फॉलो नहीं होता, बट HBr है इसलिए एंटी मार्कोनिफ रूल फॉलो होगा. और अभी आपका Br ऐसे कार्बन को ज्वाइंट होगा जिसको सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है. तो ये दोनों में से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किसको है, ऑफ कोर्स इसको. तो Br यहाँ ज्वाइंट होगा, हाइड्रोजन इधर. लॉन्गेस्ट चेन आपने ढूंढना है, सो इट इज़ 1 2 3 4. सो इट इज़ ब्यूटेन. So it is 1 bromo 3 methyl butane. तो 1 bromo 3 methyl butane. नेक्स्ट ये वाला रिएक्शन है जिसमें SOCl2 रिएक्ट होगा अल्कोहल से. तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, SO2 गैस बनता है, Cl रिप्लेस हो जाता है, OH को Cl रिप्लेस करता है और HCl बन जाता है. तो ये बन जाएगा अल्काइल क्लोराइड. सो आपको याद रखना है whenever alcohol reacts with SOCl2 it always give you alkyl chloride. ठीक है, अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद SOCl2 गिव्स यू अल्काइल क्लोराइड. तो अल्काइल क्लोराइड बना दो, SO2 गैस और HCl गैस निकाल दो, एंड दिस इज नाउ क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. नेक्स्ट
आपको पता है ये टोलिन है जो Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है डार्क में, सो ऑफ कोर्स Cl अब देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये Cl ऐड हो जाएगा पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे। एक्चुअली आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे कि ये क्लोरीनेशन रिएक्शन है। यदि आपको याद हो, हमने लेक्चर नंबर 5 में देखा है क्लोरीनेशन रिएक्शन, तो उसमें देखा है दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक पैरा एक ऑर्थो, बट आई हैव टोल्ड यू दैट पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। और ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, क्वेश्चन बोलता है सिर्फ मेजर प्रोडक्ट के बारे में लिखना, ठीक है। सो नो नीड टू डिस्क्राइब दिस माइनर प्रोडक्ट एंड पैरा इज द मेजर, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ है इसलिए इट इज माइनर। और मेजर प्रोडक्ट का नाम है 1-chloro-4-methyl benzene। सो 1 2 3 4 1-chloro-4-methyl benzene। So I hope so you must have got all of these reactions, and if you have still doubt you can ask me in the comment box or in the email ID, okay? Now the next question is identify chiral molecule from the following। किसमें chiral molecule है, तो उसके लिए आपको ऐसा कार्बन ढूंढना है जिसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। तो फर्स्ट ये वाला, तो ये इसमें देखो, ये तो इसमें CH3 है, CH2 है, CH3 है। ये वाला कार्बन देखो, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक मिथिल अटैच है, एक OH अटैच है, एक इथिल। तो इस कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये कायरल है, करेक्ट। सो A इज कायरल। बी के लिए ये वाले कार्बन को देखोगे तो एक हाइड्रोजन अटैच है, एक ब्रोमीन, पर दोनों तरफ इथिल है, ये कायरल हुआ नहीं, क्योंकि इट डजंट हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स, सो दिस इज नॉट कायरल। नेक्स्ट ये, इसमें भी देखो एक Br है, 2 हाइड्रोजन है और एक N प्रोपिल, पर 2 हाइड्रोजन है इसलिए 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है नहीं, सो दिस इज ऑल्सो नॉट कायरल। टॉकिंग अबाउट दिस, इसको भी दोनों मिथिल अटैच है, करेक्ट, और एक हाइड्रोजन और एक इथिल, पर 2 तो सेम ग्रुप है इसलिए ये भी कायरल नहीं। सो कायरल कार्बन मीन्स अ कार्बन विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, सो A B C D, तो वही हम उस कार्बन को कायरल बोलेंगे। एक भी ग्रुप सेम रहा तो दैट इज नॉट कायरल, सो योर ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट, which one compound from the following pairs could undergo SN2 faster? तो पहला इस पेयर में से कौन सा फास्टर जाएगा? तो पहला है अल्काइल प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड, सेकेंड इज सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड। और SN2 रिएक्शन के लिए आपको पता है प्राइमरी रिएक्ट्स फास्टेस्ट, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी SN2 रिएक्शन के लिए। तो ऑफ कोर्स ये वाला अल्काइल क्लोराइड विल रिएक्ट फास्टर देन दिस बिकॉज इट इज प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड। नेक्स्ट, ये वाले में से कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा? N प्रोपिल आयोडाइड और N क्लोरीन क्लोरो आयोडाइड, तो ये दोनों में से कौन रिएक्ट करेगा फास्टेस्ट? ऑफ कोर्स द आयोडो N आयोडो प्रोपिन। व्हाई दिस विल रिएक्ट फास्टर? क्योंकि आपको पता है आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, देन ब्रोमीन, देन दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन। सो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन, और इसलिए आयोडीन यहाँ पे फास्ट रिप्लेस हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा रिएक्ट करेगा? ये वाला। सो फर्स्ट वाले पेयर में प्राइमरी वाला रिएक्ट करेगा, सेकंड वाले पेयर में आयोडीन कंटेनिंग रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये सीक्वेंस है। तो ये दोनों सीक्वेंस आप नोटबुक में जल्दी से लिख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फॉर SN2 रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड्स रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी देन टर्शरी। एंड अबाउट लिविंग ग्रुप, आयोडीन सबसे पहले रिएक्ट करेगा, अल्काइल हाइलाइड जिसमें आयोडीन वो फर्स्ट रिएक्ट करेगा, फिर ब्रोमीन वाला, फिर क्लोरीन वाला, फिर फ्लोरीन वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस गिविंग मेजर प्रोडक्ट्स। सो मेजर प्रोडक्ट्स के हिसाब से आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करना है। सो द फर्स्ट आपने देखा HBr पेरोक्साइड, तो यस इट इज अ एंटी मार्कोनिफ्स रूल, HBr है इसलिए फॉलो होगा। तो ए प्रोडक्ट आपका होगा CH3 CH2, क्योंकि हाइड्रोजन इस कार्बन को लगेगा, और ब्रोमीन ऐसे कार्बन को जिसको ज्यादा हाइड्रोजन है इसलिए ब्रोमीन इधर। सो दिस इज एंटी मार्कोनिफ्स रूल। एक बार ये हो गया तो आपके पास है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH, ये जब भी वर्ड आपको दिखे मतलब आपको इलिमिनेशन करना, याद रखना, जब भी आपको अल्कोहलिक KOH दिखेगा तो आपने क्या करना है? इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन। और आपको पता है बीटा एलिमिनेशन कैसे करते हैं? तो हाइड्रोजन एक कार्बन से और ब्रोमीन सेकेंड कार्बन से आप लूज करोगे और आपको मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2।
सो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहाँ पे एंड करोगे. सो फर्स्ट इज द एंटी मार्कोनिफ्स रूल, सेकेंड इज बीटा एलिमिनेशन. सेकेंड क्या है? बीटा एलिमिनेशन. और पहला एंटी मार्कोनिफ्स रूल. ओके, नेक्स्ट ये वाले रिएक्शन में सो यू हैव दिस टाइप ऑफ अल्कोहल, ओके, विच इज रिएक्टिंग विथ, एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने गलत दिया है क्योंकि ये CH3 होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे नहीं तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है. यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड कंसीडर करोगे तो इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, जो गलत है. इसलिए आप इसको सिंगल बॉन्ड करोगे और यहाँ CH3 लिखोगे तो आपको क्वेश्चन गलत सही हो जाएगा. गिवन क्वेश्चन इज रॉन्ग, यू हैव टू करेक्ट इट बाय ड्रॉइंग अ सिंगल बॉन्ड हियर एंड मेकिंग इट CH3. ओके, नाउ डू विथ रेड फॉस्फोरस एंड Br2. जैसे आप देख सकते हो Br2 है, मतलब ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा Br और ये हो जाएगा CH3. करेक्ट, ये एक बार हो गया. अब इसमें आप डालोगे Ag2O प्लस वाटर. सो Ag2O प्लस वाटर क्या करता है? आपको Br को रिप्लेस कर देगा OH से, तो आपको मिल जाएगा अब यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल. सो यू गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल एज द प्रोडक्ट. करेक्ट. सो द फर्स्ट रिएक्शन क्या है? रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 बनता है PBr3. PBr3 रिएक्ट करेगा आपकी अल्काइल है एक्चुअली अल्कोहल से, जिसको बना देगा अल्काइल ब्रोमाइड. और अल्काइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद सिल्वर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सिल्वर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर विल गिव यू अगेन अल्कोहल बैक. सो अगेन जहां से आपने शुरू किया था वहां पे ही आप एंड करोगे. सो यू हैव स्टार्टेड विद द सेकेंडरी अल्कोहल, यू एंडेड विद द सेम सेकेंडरी अल्कोहल. ओके, नेक्स्ट इज दिस रिएक्शन वेर यू हैव सोडियम इन ड्राई ईथर. तो ये वाला विथ सोडियम इन ड्राई ईथर. सो आपको याद होगा कि यही सेम आपने ढूंढा था इस वाले क्वेश्चन में. ओके, इस वाले एमसीक्यू में यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिया था और रिएक्टेंट पूछा था. करेक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया था और रिएक्टेंट पूछा था. अब यहाँ पे रिएक्टेंट दिया है, वही रिएक्टेंट है, अब प्रोडक्ट पूछा है. सो सोडियम इन ड्राई ईथर in the presence of this will give you the Brude's reaction and you know that what you will get. वहाँ पे जो लिखा था क्वेश्चन में प्रोडक्ट, वही आपको यहाँ पे मिलने वाला है. तो सेम है दोनों, वहाँ पे जस्ट रिएक्टेंट पूछा है, यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा है. तो ये हुआ CH3 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 और यहाँ पे भी हुआ आपका CH3 CH3 CH3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अराइल क्लोराइड Mg ड्राई ईथर, यस इट इज अ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मिलेगा. तो कोई भी अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड हो और मैग्नीशियम आ जाए तो मैग्नीशियम आपके कार्बन और हैलोजन के बीच में घुस जाता है और देता है आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. सो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर दिस. ओके, नेक्स्ट नेम द रिएजेंट विच इज यूज्ड टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स. सो आपको ब्रोमो इथेन से बनाना इथॉक्सी इथेन, मीन्स ब्रोमो को रिप्लेस करना है इथॉक्सी ग्रुप से. सो ब्रोमो इथेन टू इथॉक्सी इथेन, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रोमीन टू इथॉक्सी. सो आप यहाँ पे रिएजेंट यूज करोगे सोडियम इथॉक्साइड. सो सोडियम इथॉक्साइड का OC2H5 विल बी द न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा ब्रोमो इथेन पे, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा इथॉक्सी से. सो ये हुआ आपका रिएजेंट, यहाँ पे यूज होगा सोडियम इथॉक्साइड. नेक्स्ट, 1 क्लोरोप्रोपेन को बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन, मतलब क्लोरीन रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो. तो आपको ऐसा रिएजेंट यूज करना जो नाइट्रो दे, तो है AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट. तो वो क्या करेगा? क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा नाइट्रो से. नेक्स्ट, इथिल ब्रोमाइड टू इथिल आइसोसाइनाइड. इथिल ब्रोमाइड टू इथिल आइसोसाइनाइड, दैट इज ब्रोमाइड को रिप्लेस करना है आइसोसाइनाइड से. सो आपको पता है यदि साइनाइड से रिप्लेस करना है, सो इफ यू वांट टू मेक इथिल ब्रोमाइड टू इथिल साइनाइड देन यू विल यूज KCN. ठीक है, साइनाइड बनाने के लिए आपने ऑलवेज यूज करना है KCN, बट जब आपको आइसोसाइनाइड बनाना है तो आपने यूज करना है AgCN. यदि आपको मेरा लेक्चर याद हो तो ये डिफरेंस याद रखना है. सो व्हेन यू वांट टू मेक इथिल ब्रोमाइड टू इथिल साइनाइड यूज KCN, but if you want to make isocyanide use AgCN. नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनिल. तो आपको याद होगा कौन सा रिएक्शन है?
फिटिक रिएक्शन। यस, फिटिक रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और वो बनाता है सेम ये ब्रूट्स रिएक्शन की तरह ही है, पर ये दो अराइल हैलाइड के बीच में होता है। ब्रूट्स रिएक्शन होता है दो अल्काइल हैलाइड के बीच में, फिटिक रिएक्शन होता है दो अराइल हैलाइड के बीच में और वो देता है बाइफिनिल। सो दिस इज फिटिक रिएक्शन। रिएजेंट सेम है, सोडियम इन ड्राई ईथर। सो दिस इज द रिएक्शन। सो द फर्स्ट रिएक्शन का रिएजेंट है सोडियम इथॉक्साइड, सेकेंड का सिल्वर नाइट्रेट, थर्ड का सिल्वर साइनाइड और फोर्थ का है सोडियम इन ड्राई ईथर। ओके, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा उस ऑर्डर में इंक्रीज लिखना है, तो सबसे कम वाला पहले लिखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा। अब आपको यहाँ पे याद रखना है एक बेसिक थिंग। फर्स्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन का पहले सबका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो। तो दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रही हूँ, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। सो 2 ब्रोमोप्रोपेन में ब्रोमीन लगेगा 2 पोजीशन पे। सो दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट इज 1 ब्रोमोब्यूटेन। सो 1 ब्रोमोब्यूटेन में Br होगा आपके 4th पोजीशन पे। नेक्स्ट इज 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। सो 1 ब्रोमो प्रोपेन है तो 1 ब्रोमो और 2 पे मिथिल। अब आपको बताना है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सबसे कम वाला किसका है। ऑफ कोर्स सबसे कम, देखो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है, ऑफ कोर्स ए बी का सबसे कम है, दोनों का वेट सेम रहेगा बिकॉज बोथ आर आइसोमर्स। सो ए या बी में से ही सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि ये दोनों का ही वेट सबसे कम है। इसमें तो बाकी में आप देख सकते हो 4-4 कार्बन है, ये दोनों में 3-3 कार्बन है, करेक्ट। बट अब इसमें से भी ये है लीनियर, दैट इज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज सेकेंडरी। तो आपको याद रखना है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। ओके, सो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कंपेयर टू प्राइमरी, इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है बी का। फिर बॉइलिंग पॉइंट ए का है कम। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। ये दोनों भी एक दूसरे का आइसोमर्स है, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बट याद रखो ब्रांच्ड वाले का ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। तो डी और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा सी का। तो पहले आपने क्या ध्यान में रखना है, वेट। जिसका सबसे कम वेट उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दोनों का वेट कम था, उसमें से भी याद रखना है कि ब्रांचिंग रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसमें ब्रांचिंग है, इसमें लीनियर है, तो ये वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, फिर इसका, ये दोनों में से ये ब्रांचिंग है, फिर इसका, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है सी का। आई होप सो यू मस्ट हैव गॉट दिस। नाउ मैच द पेयर। तो आपको मैच द पेयर करना है with their classification. Okay, so this is which type of alkyl halide? Yes, it is a normal alkyl halide, so this is 1 का 2 है। Okay, next this is which type of alkyl halide? आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये जो हेलोजिन है 1 कार्बन अवे फ्रॉम द डबल बॉन्ड। सो हेलोजिन इज 1 कार्बन अवे फ्रॉम डबल बॉन्ड, इसलिए है अल्काइल हैलाइड, ठीक है, सॉरी एलिलिक हैलाइड, क्योंकि हेलोजिन 1 कार्बन अवे फ्रॉम द डबल बॉन्ड और हेलोजिन डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्ड मीन्स विनाइलिक हैलाइड। सो ए का ऑप्शन 2, डी का 3, सी का 1। सो दिस इज द मैच द पेयर। नेक्स्ट, गिव रीजन। हैलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हैलोअल्कीन्स। तो आपको इसका रीजन पता है, आप इसको जाके मेरे वीडियो नंबर 5 में देख सकते हो, हैलोजन डेरिवेटिव वीडियो नंबर 5। नेक्स्ट, अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। इसको आप मेरे वीडियो नंबर 2 में जाके देख सकते हो। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ग्रीनर्स रिएजेंट मस्ट बी कैरिड आउट अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ये कोई इसमें दिया नहीं है वीडियो में, बट मैं बता देती हूँ क्योंकि ग्रीनर्स रिएजेंट का रिएक्शन यदि आप पानी के प्रेजेंस में करोगे तो ग्रीनर्स रिएजेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कि आपने इस रिएक्शन में देखा है, हमने अभी अभी एक ग्रीनर्स रिएजेंट का रिएक्शन किया था एमसीक्यू में, याद होगा। तो ग्रीनर्स रिएजेंट है और फिर मैंने उसमें वाटर ऐड कर दिया तो ग्रीनर्स रिएजेंट डिस्ट्रॉय हो गया, करेक्ट। सो इसलिए हमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए इस रिएक्शन में। यदि इस रिएक्शन में पानी ले लिया आपने गलती से भी 1 ड्रॉप पानी भी, तो आपका ग्रीनर्स रिएजेंट डिस्ट्रॉय होकर अल्कीन दे देगा। इसलिए ग्रीनर्स रिएजेंट का रिएक्शन एनहाइड्रस कंडीशन में ही किया जाता है। ओके, नेक्स्ट,
अल्काइल हैलाइड्स आर जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन हमेशा आपको पॉली सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड्स दे देते हैं। मतलब एक अल्काइल हैलाइड जिसमें एक से ज़्यादा हैलोजन एटम है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन से जब भी आप प्रिपेयर करोगे तो आपको ऐसा अल्काइल हैलाइड मिलेगा जिसमें एक से ज़्यादा हैलोजन एटम होंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए पॉली अल्काइल हैलाइड को नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं फॉलो करते, नॉर्मल वे करते हैं जिससे हमें मोनो या डाई अल्काइल हैलाइड मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये आप मेरे वीडियो नंबर 4 में भी जाके देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने एक स्मॉल वे में टेबल लिख के दिया जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है इस तरह से। सो SN1 SN2 SN1 रिएक्शन में आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बोथ आर इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, और उसको रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं जिसमें रिटेंशन भी रहता है और इन्वर्जन भी। बट SN2 में आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही मिलता है, दैट इज वाल्टन इन्वर्जन। ठीक है, SN1 टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा देता है, SN2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देता है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड देन द प्रोडक्ट। SN1 1 स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में हो जाता है। SN1 में फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, सेकेंड स्टेप इज फास्ट, बट SN2 एक ही स्टेप में है। SN1 रिएक्शन सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंडेंट है, उसको कोई मतलब नहीं है न्यूक्लियोफाइल से। SN1 रिएक्शन सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे है, बट SN2 रिएक्शन दोनों पे डिपेंडेंट, अल्काइल हैलाइड पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंडेंट है इसलिए ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ये दोनों पे डिपेंडेंट है, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पे, इसलिए ये बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। ये नॉन कंसंट्रेटेड रिएक्शन, नॉन कंसंट्रेटेड मतलब ये 2 स्टेप में, कंसंट्रेटेड मतलब एक ही स्टेप में है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कली, इसको कुछ मतलब नहीं है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल हमने यूज़ किया है, बट SN2 को डिपेंडेंट ऑन अल्कली, उसको मतलब है कि हमने कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया है। इसमें कार्बोकेटायन बनता है इंटरमीडिएट, इस रिएक्शन में होता है ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट नहीं बनता, और ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन को 5 ग्रुप्स अटैच होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिलता है आपको रेसिमिक मिक्सचर, इन्वर्टेड भी रिटेन्ड भी, यहाँ पे आपको टोटल इन्वर्जन दैट इज बाल्टन इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। ओके, ये वाला रिएक्शन प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है, ये वाला रिएक्शन अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है। इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स मोस्ट एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लीस्ट। यहाँ पे उल्टा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मोस्ट एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड लीस्ट। और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो वीडियो नंबर 4 भी देख सकते हो। Next, explain the optical isomerism of 2-chlorobutane. So this is the structure of 2-chlorobutane, और आप देख सकते हो ये वाला कार्बन कायरल है, कार्बन नंबर 2 इज कायरल बिकॉज इट हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू इट, और इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। और इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब इसका मिरर इमेज बनेगा, और जो मिरर इमेज एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब दोनों एक दूसरे पे नहीं बैठ सकते। सो दिस इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ 2-chlorobutane। तो आपको 2-chlorobutane का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करना लिखना है, दे शो ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये आपने लिखना है। ठीक है, तो दोनों क्या दिखा रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, और दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल। सो दिस इज प्रोपीन, आपको इसको बनाना है 1 प्रोपेनॉल। सो प्रोपीन को आपको 1 प्रोपेनॉल बनाने के लिए आपको पहले एंटी मार्कोनिफ्स रिएक्शन करना होगा। एंटी मार्कोनिफ्स रिएक्शन करते ही ब्रोमीन ऐड हो जाएगा उस कार्बन को जिसको सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, सो 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। नाउ इसको आप एक्वस KOH से करो, अल्कोहलिक KOH से करोगे तो आपको इलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा, एक्वस KOH से करोगे तो आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, जहाँ ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH से। तो ये हो गया आपका प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल। ओके, यदि आप डायरेक्ट एक्वस KOH इसमें ऐड करोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, तो पहले आपको करना एंटी मार्कोनिफ्स रूल, और उसके बाद डालना एक्वस KOH, नॉट अल्कोहलिक। रिमेंबर, अल्कोहलिक KOH डालते ही इलिमिनेशन हो जाएगा, और एक्वस डालते ही सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, बेंजिल अल्कोहल टू बेंजिल साइनाइड। तो बेंजिल अल्कोहल टू बेंजिल साइनाइड, देखो अल्कोहल को डायरेक्ट हम साइनाइड से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो पहले हमको कन्वर्ट करने होगा इसको अल्काइल हैलाइड में। तो इसके लिए आप कुछ भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, PCl5 या PCl3 या SOCl2,
ओके, एनी रिएजेंट यू कैन यूज आउट ऑफ दिस, और उसको कन्वर्ट कर लो अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करो KCN तो मिल जाएगा बेंजिल साइनाइड। यदि बेंजिल आइसोसाइनाइड चाहिए तो AgCN यूज करोगे, बेंजिल साइनाइड चाहिए तो KCN, याद रखना साइनाइड के लिए KCN, आइसोसाइनाइड के लिए AgCN। नेक्स्ट, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, तो इथेनॉल फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट टू अल्काइल हैलाइड, तो आप यूज करो HCl, आप यूज कर सकते हो HBr, आप यूज कर सकते हो HI, कोई भी अल्काइल हैलाइड में से कन्वर्ट कर लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। फिर उसके बाद उस अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करो KCN से, तो आपको मिल जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। दिस इज 1 2 3 कार्बन, सो प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, यू कैन नोट दिस डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। नेक्स्ट इज ब्यूटेन 1ene टू एन ब्यूटिल आयोडाइड, तो ब्यूटेन 1ene को आपको क्या करना है, एन ब्यूटिल आयोडाइड, तो दिस इज ब्यूटेन 1ene। अगेन एंटी मार्कोनिक्स रूल करना है, जब भी आपको 1 पोजीशन पे कोई भी अल्काइल अल्कीन में 1 पोजीशन पे आपको डालना होगा हैलोजन एटम, तो हमेशा एंटी मार्कोनिक्स रूल फॉलो करो। यदि आप एंटी मार्कोनिक्स रूल फॉलो नहीं करोगे, नॉर्मल मार्कोनिक्स रूल से जाओगे, तो आपका हैलोजन हमेशा सेकंड पोजीशन पे लग जाएगा, ना कि फर्स्ट पोजीशन पे। पर फर्स्ट पोजीशन पे आपको हैलोजन लगाना है तो हमेशा आपको एंटी मार्कोनिक्स रूल फॉलो करना होगा। तो एंटी मार्कोनिक्स रूल सिर्फ HBr के लिए वर्क करता है, इसलिए ये रिएक्शन पहले मुझे HBr के साथ करना पड़ेगा और फिर आयोडीन से रिप्लेस करना होगा। ठीक है, यदि मैं डायरेक्ट Ni इसमें डाल दूँ तो मेरा आयोडीन सेकंड पोजीशन पे लग जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एन ब्यूटिल आयोडाइड। सो फर्स्ट आई विल डू एंटी मार्कोनिक्स रूल where I will add Br to the first carbon and then do halogen exchange reaction, that is Wilkinson reaction, where I will replace Br by Ni and now iodine will be get substituted to Br and this will be N butyl iodide. Next is 2-chloropropane to propane 1-ol, so this is 2-chloropropane और मुझे बनाना 1 प्रोपेनॉल। 2 पोजीशन से OH को निकाल के 1 पोजीशन पे OH लगाना है, Cl को 2 पोजीशन से निकाल के 1 पोजीशन पे OH लगाना है। सो डायरेक्टली यदि मैं इसमें रिएक्शन करूँ, मतलब एक्वस KOH डायरेक्टली मैं इसमें ऐड करूँ, इज इट पॉसिबल? नहीं, तब मुझे मिल जाएगा 2 प्रोपेनॉल, पर मुझे 2 प्रोपेनॉल नहीं चाहिए, 1 प्रोपेनॉल चाहिए। तो पहले मैं क्या करूँगी, बीटा एलिमिनेशन। सो पहले मैं करूँगी बीटा एलिमिनेशन, और मैंने बताया है बीटा एलिमिनेशन के लिए कौन सा रिएजेंट, अल्कोहलिक KOH। Alcoholic KOH will always give you beta elimination, you get this product. Now do anti-Markovitch rule. 1 पोजीशन पे कुछ भी ज्वाइन करना है आपको तो हमेशा एंटी मार्कोनिक्स रूल करो। एंटी मार्कोनिक्स रूल के लिए आपको HBr यूज करना पड़ेगा पेरोक्साइड में, तो Br ऐड हो गया। फिर उसके बाद एक्वस KOH डालो, तो एक्वस KOH Br को रिप्लेस कर देगा। यदि इस रिएक्शन में डायरेक्ट आप एक्वस KOH डालोगे तो आपको मिल जाएगा 2 प्रोपेनॉल, जो मुझे नहीं चाहिए। एक्वस KOH डायरेक्ट स्टार्टिंग मेथड में डालोगे तो 2 प्रोपेनॉल मिलेगा, जो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मुझे ऐसे जाना होगा। पहले अल्कोहलिक KOH जिससे अल्कीन मिले, फिर इसमें एंटी मार्कोनिक्स रूल जिसमें Br लग जाए ऐसे कार्बन को जिसको ज़्यादा हाइड्रोजन है, और फिर एक्वस KOH से रिप्लेसमेंट, तो मुझे मिल जाएगा 1 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट इज टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। सो टर्शरी को आइसोब्यूटिल बनाना है, अगेन यू हैव टू डू एंटी मार्कोनिक्स रूल। यदि आपको कोई भी हैलोजन एटम का पोजीशन चेंज करना है और उसको अल्कोहल या कुछ और बनाना है, तो आपको हमेशा एंटी मार्कोनिक्स रूल थ्रू जाना होगा। अगेन यूज अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH अगेन बीटा एलिमिनेशन देगा, हाइड्रोजन यहाँ से, Br यहाँ से, सो यू गेट दिस। सो दिस इज अगेन बीटा एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, और उसके बाद एंटी मार्कोनिक्स रूल से आप रिएक्शन करोगे HBr in the peroxide, so Br will get added to this carbon and you get here isobutyl bromide. I hope so you must all have got this reaction. अभी भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इस वीडियो को पॉज करके आप रिएक्शंस लिख सकते हो। नेक्स्ट इज द एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, यस सैंडमियर रिएक्शन। तो एनिलीन लोगे, उसमें NaNO2HCl डालोगे, ये 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। एनिलीन में Na2HCl डालोगे तो बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज N2+Cl-, सो दिस इज अ डाइजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट में आप CuCl डालोगे तो आपका N2 रिप्लेस हो जाएगा Cl से, और यहाँ पे निकल जाएगा N2 गैस। सो दिस इज सैंडमियर रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है, सैंडमियर रिएक्शन। नेक्स्ट प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन, और मुझे कौन से पोजीशन पे नाइट्रो लगाना है,
फर्स्ट पोजीशन पे। जब भी मुझे कोई भी रिएक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे कुछ लगाना है तो मैंने बताया आपको क्या यूज़ करना है, एंटी मार्कोनिक्स रिएक्शन। ये ट्रिक है, याद रखो। कोई भी रिएक्शन में कोई भी ग्रुप आपको फर्स्ट पोजीशन पे लगाना है तो पहले आपको करना पड़ेगा एंटी मार्कोनिक्स रिएक्शन, जिसका सिर्फ एक ही रिएजेंट है, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide। सो योर Br विल गेट एडेड टू लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, फिर AgNO2 यूज़ करो तो आपके फर्स्ट पोजीशन में NO2 लग जाएगा। यदि आप AgNO2 ट्राई करोगे डायरेक्ट इसके साथ तो रिएक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट यू हैव टू डू एंटी मार्कोनिक्स रूल और उसके बाद योर नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCl is added to a hydrocarbon A to give product B, which on hydrolysis with aqueous alkali forms tertiary alcohol C. Identify A, B, C. तो A का है C4H8, ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो HCl के साथ रिएक्ट करके B दे रहा है। HCl के साथ तो रिएक्ट हो रहा है, मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन दिखाएगा? ऑफ कोर्स एडिशन रिएक्शन, और सिर्फ ऑलिफिन से जो एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। सो दिस इज द A विच रिएक्ट्स विथ HCl, और आपको पता है HCl मार्कोनिक्स रूल दिखाता है, मार्कोनिक्स रूल की वजह से Cl ऐड होगा इस पोजीशन पे, हाइड्रोजन इज, सो यू गेट दिस प्रोडक्ट, दिस इज B। और जब B को मैंने रिएक्ट किया एक्वस अल्कली के साथ, तो एक्वस अल्कली क्या करता है मुझे? सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट। अल्कोहलिक अल्कली देता है इलिमिनेशन, aqueous alkali देता है substitution. So OH will be substituted by OH. Okay, Cl will be substituted by OH. और इसका फॉर्मूला देख लो, कितने कार्बन चाहिए आपको? 4. So 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन और 10 हाइड्रोजन. So this is the C. So this is the A which reacts with HCl in the presence of the some solvent, और ये मार्कोनिक्स रूल फॉलो करके आपको देगा B रिएक्ट करेगा एक्वस KOH के साथ, जो देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आपको मिलेगा ये अल्कोहल, दैट इज C. दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, सो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस राइटिंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ABC. सो 2-bromobutane reacts with alcoholic KOH. अल्कोहलिक KOH वर्ड आ गया, यस करेक्ट बोल रहे हो आप, ये इलिमिनेशन है। सो एक्वस रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक रहेगा तो इलिमिनेशन। हमेशा याद रखना है, अल्कोहल बैड फॉर हेल्थ, करेक्ट, तो वो हमेशा इलिमिनेशन करेगा। एक्वस दैट इज वाटर, अच्छा हेल्थ के लिए, तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन करेगा। ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हो। तो अल्कोहलिक इलिमिनेशन करेगा। सो अब आपके पास है 2-bromobutane। ओके, सो 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, आपके पास है ये 2-bromobutane, और इसमें आपने क्या ऐड कर दिया है? आपने ऐड कर दिया है अल्कोहलिक KOH, सो इट विल गिव यू इलिमिनेशन एंड यू विल गेट 2-butene। ब्यूटेन में Br2 ऐड करोगे तो आपको पता है एडिशन रिएक्शन 11th में पढ़ा है, तो Br दोनों जगह ऐड हो जाएगा, और फिर NaNH2 यूज़ करोगे तो इलिमिनेशन हो जाएगा, यू गेट 2-butene। सो दिस इज योर A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C। सो ये रिएक्शन A हो गया। रिएक्शन B, रिएक्शन B में आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल ड्रॉ कर लो आप फटक से। सो दिस इज योर आइसोप्रोपिल अल्कोहल, दैट इज CH3 CH3, और ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब इसको रिएक्ट करना है आपको PBr3 के साथ, करेक्ट। सो जब वो PBr3 के साथ रिएक्ट करेगा, आपको पता है क्या मिलेगा? ब्रोमाइड, OH की जगह मिलेगा आपको ब्रोमीन। तो ये हो गया आपका A, ये हो गया, ये था A रिएक्शन, अब ये B है, तो ये मिला आपका A, और इसको रिएक्ट करोगे आप NH3 के साथ, तो NH3 के साथ रिएक्ट करते ही OH किससे रिप्लेस हो जाएगा? NH2 से, दैट इज यू विल गेट अमाइन। सो ये हो गया CH3 और OH अब रिप्लेस हो जाएगा NH2 से, तो ये मिल गया अमाइन, तो दिस इज B। सो A इज अल्कोहल विल रिएक्ट विथ PBr टू गिव यू, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया OH, तो ये बन जाएगा ब्रोमाइड। सो दिस इज A। ओके, सो आपको मिलेगा ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड जब रिएक्ट करेगा NH3 के साथ तो मिलेगा अमाइन, दैट इज B। सो दिस इज आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड A एंड आइसोप्रोपिल अमाइन B प्रोडक्ट। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके आप ये रिएक्शंस नोट डाउन कर सकते हो बुक में। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो।
ये दोनों में से, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन को ठीक से देखो और अभी क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन, yes correct, that is vinylic halide, this is vinylic halide। जब हैलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, डबल बॉन्ड को अटैच है, तो है विनिलिक हैलाइड। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द बॉन्ड लेंथ ऑफ HX, सॉरी CX के बॉन्ड लेंथ पे कमेंट करना है। तो यहाँ पे CX बॉन्ड आपको दिखता है सिंगल, यहाँ पे डबल, और मैंने बताया आपको पहले भी, डबल बॉन्ड यदि प्रेजेंट हो तो डबल बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, एंड बॉन्ड लेंथ मतलब अभी क्या है, शॉर्ट। क्यों बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बना रहा है, एंड डबल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर, सो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है। नेक्स्ट, कैन इट रिएक्ट बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म हो सकता है क्या? SN1 मैकेनिज्म होने के लिए पहले आपको आपका हैलोजन निकालना पड़ेगा और कार्बोकेटाइन फॉर्म करना पड़ेगा। ये हैलोजन जल्दी नहीं निकल सकता क्योंकि डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, करेक्ट। सो डबल बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से ये हैलोजन जल्दी नहीं जाएगा, इसलिए SN1 रिएक्शन क्या SN2 रिएक्शन भी जल्दी से नहीं करेगा। एंड द बॉन्ड हियर इज sp2 हाइब्रिडाइज, एंड बिकॉज ऑफ दैट द बॉन्ड लेंथ इज शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गया तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए हैलोजन विल नॉट गो फास्टर एंड देयरफॉर कार्बोकेटाइन विल बी नॉट फॉर्म्ड एंड देयरफॉर इट कैन नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट रीजन है, SN1 रिएक्शन करने के लिए न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी। जब न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा तो ये डबल बॉन्ड इसको रिपेल करेगा क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और इसलिए वापस SN1 रिएक्शन ही होगा। सो दिस आर द टू रीजन बिकॉज ऑफ विच SN1 रिएक्शन कैन नॉट अकर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, you can ask on this email ID, that is askyourdoubt04@gmail.com. And if you have liked my video, please give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends so that I get inspired to make better content for you. Any suggestion, any doubt, you can write that in comment box or in this email ID also. That's all for today. Thank you. And thought of the day is, don't let yourself be controlled by these three things: your past, people, and money. So thank you and stay